Assalamualaikum and a very good day to one and all. Hope this video finds you all in pink of health. May Almighty Allah keep everyone safe and sound. Okay, so we continue with the social health chapter. We have completed till incurable diseases in the last video. We continue with communication media and excessive use of modern technology. Communication media, now we know that nowadays it has become very easy to talk to people. Earlier only WhatsApp was there. Earlier actually they had Yahoo Messenger and all. Okay, then webcam was there. Now because of the modifications in the mobile system, the mobile itself is serving as a small computer. So it has become very easy for people to communicate. You can text a message, you can use WhatsApp, Facebook, Instagram, everything on your mobile phone itself. So it is serving as a communication media whereby you can do chats by audios also and by videos also, or you can text up. So you have three modes. You can write down the message, you can record your voice and send a message, or you can send your message through a video, or you can call and talk to any person in any corner of the world with the help of this modifications in the modern technology. Now, excessive use of modern technology refers to the habit of the people getting more engrossed with their mobiles. People nowadays are more commonly inclined towards playing games on the mobile phone. Many of them use the mobile phone for listening to music. Some of them even use them to see movies, videos, news, many things. Okay, so nowadays we can say that the usage of TV or mobile can serve you as a TV also, whereby you can see live news programs and all. Now what happens when you use it excessively? Unnecessary and irritational use of modern technology and communication media is becoming a sensitive issue through the viewpoint of social health. Because nowadays if you go as a guest to anyone's place or somebody comes to your place, people are more keen to see what messages are coming up, bumping up on the mobiles rather than talking to the guest who has come. So what happens is the person who has come is come to meet you, to talk to you, and rather we pay more attention on the mobile rather than the person who has come to visit us. कोई भी हमारे घर इसलिए नहीं आता है कि उसके पास फालतू टाइम है, हमसे मोहब्बत है, लगाव है, उनसियत है, इसलिए वो लोग हमसे मिलने आते हैं, हमसे बात करने आते हैं. हमसे अगर कोई घर पे बात करने आ रहा है और हम बैठे हैं अपने मोबाइल को ही लेकर, हमको लगता है हमने नाश्ता दे दिया, उसको रिफ़्रेशमेंट जो भी है देना हमको दे दिया या खाना दे दिया, तो हमने बहुत बड़ा काम किया. भाई हमने काम तो किया ना, हम मिले तो सही, हमने दिया तो सही, खिलाया तो सही, पिलाया तो सही. नहीं, आप चाहे कुछ खिलाओ पिलाओ नहीं, लेकिन बैठ के उस बंदे से बात करोगे तो वो शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा बनिस्बत इसके कि आप लोग उनको सारी चीज़ें सर्व करें वैरायटी में. पर्सन स्पेंडिंग द टाइम विद द सेल फोन्स फॉर सेवरल आवर्स आर यूजुअली अनअवेयर ऑफ द सराउंडिंग. हमारे आसपास क्या चल रहा है हमको उस बारे में मालूम ही नहीं रहता, क्योंकि हम मोबाइल में ही बहुत ज़्यादा मशगूल रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं, व्यस्त रहते हैं. दिस इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एडिक्शन एंड लीडिंग टू एंडेंजरिंग ऑफ सोशल हेल्थ. क्योंकि क्या होता है, हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं, हम लोग बात नहीं करते हैं. इसके अलावा फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा थकावट है, सर दर्द है, इनसोम्निया है, स्लीपनेसनेस, हमको नींद नहीं आती है, हम भूल जाते हैं चीज़ों को. ओके, जॉइंट पेन्स का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है तो बदन हाथ में दर्द रहता है. आँखों का भी प्रॉब्लम आता है, विजन का, क्योंकि जो आँखों की सेल्स होती हैं वो जो रेडिएशन एमिट होते हैं सेल फोन से, उससे वो डिस्ट्रॉय होती हैं. बच्चों के बोन्स जो होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं. जो बंदा कंटिन्यूसली कंप्यूटर्स यूज़ करता है या इंटरनेट यूज़ करता है वो सॉलिटरी मतलब
अकेला हो जाता है अपने आप में, क्योंकि कंप्यूटर्स पे लगातार काम करने के बाद वो इतना थक हार जाता है कि उसको किसी के लिए टाइम ही नहीं रहता है, अपने खुद के लिए भी टाइम नहीं रहता है। उसको ऐसे लगता है कि बस मैंने थोड़ा बहुत खा पी लिया, अब मैं आराम करूँ। दे कैन नॉट एस्टैब्लिश हारमोनियस रिलेशन विद रिलेटिव्स एंड अदर मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि टाइम ही नहीं है हमारे पास, ऐसा हो जाता है। तो लोग किसी से भी ताल्लुकात नहीं रखते हैं। हैबिचुअली दे बिकम सेल्फ सेंटर्ड एंड देयर बाय दे मे डेवलप प्रॉब्लम्स लाइक ऑटिज्म एंड सेल्फिशनेस। अभी देखो, बॉय यूजिंग सेल फोन वाइल ईटिंग, यहाँ पे ये जो लड़का है राइट साइड में, वो खाते खाते भी क्या है, अपने मोबाइल को देख रहा है। ऊपर ये फ़ोटो में सारे बच्चे क्या हैं, मोबाइल में टैब में लगे हुए हैं। अब यहाँ पे है ये एक फ़ीमेल है जो सेल्फ़ी ले रही है रोड पे, विच इज़ अगेन वेरी डेंजरस एंड रिस्की। लोगों को लगता है हमारी जगह, हम कितनी अच्छी जगह पे हैं, या हम कहाँ हैं, हमारा लोकेशन का पता चल जाएगा, और ये या हमको जगह पसंद आती तो हम फ़ोटो निकाल रहे हैं, इमटीरियल ऑफ हम कहाँ हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह से अपनी आपको रिस्क में डालना है। और बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे लोग सेल्फ़ी खींचते खींचते क्या है, बैलेंस खो देते हैं और गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, या ज़ख्मी हो जा रहे हैं। गेम्स अवेलेबल ऑन सेल फोन्स एंड कंप्यूटर एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग, हमारा पूरा टाइम यूज़ लेती है। आजकल बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, पबजी हो गया, या फ्री फायर हो गया, या कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, ये खेलने का। ऑनलाइन गेम्स है, टीम बनती है, स्क्वाड बनाते हैं, ग्रुप में खेलते हैं, सारे ऑनलाइन आते हैं, बड़ा उनको मज़ा आता है। इकोनॉमिक लॉसेस होता है, नेट के लिए पैसा तो लगता ही है, मोबाइल रिचार्ज करने को पैसा लगता है, कंसंट्रेशन भी लूज़ होता है, और बहुत सारे केसेस में ये फैटल भी होता है। फैटल मतलब जानलेवा। बीच में एक गेम चल रहा था, उसमें उन लोग एक एक टास्क देते थे, वो टास्क कंप्लीट करना होता था। मुझे अभी इमीडिएटली नाम याद नहीं आ रहा है। वो गेम को फिर बैन किया गया है, तो उसमें भी काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो जो लोग सेल्फ़ी लेते लेते मर जाते हैं, जैसे सुसाइड होता है, आत्महत्या करना, वैसे ही उनकी जान जब रिस्क पे रहती है या सेल्फ़ी के वजह से वो मर जाते हैं, तो उनको सेल्फ़ी साइड कहा जाता है। ये जो पर्सन होते हैं वो कभी एट टाइम्स क्या है, इतने ज़्यादा मोबाइल्स को लेके पॉसेसिव होते हैं कि मोबाइल अगर आपने उनसे ले लिया तो वो आपको मारेंगे, पीटेंगे, लड़ाई झगड़ा करने पे तैयार होंगे, या दूसरों को मैसेजेस भेजेंगे कि भाई हमको कोई ध्यान नहीं दे रहा, अभी हम सुसाइड कर रहे हैं, या वीडियो क्लिप बनाएंगे। इनका कहीं ना कहीं क्या है, दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो जाता है, मेंटल इम्बैलेंस बोलेंगे, इसलिए उनको मेंटली इल कहा जाता है। ये लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि सारे लोग हमको क्या है, सिंपैथी दें, हमसे हम पर रहम खाएं, या हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे से पेश आएँ। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो जाता है ये, मतलब हम लोग की तरफ सारे लोग तवज्जो दें। नेक्स्ट व्हाट विल डील विद दिस, साइबर क्राइम्स। अभी यहीं पे दिया हुआ है, देखो इसी में, ये इमेज में, बिज़नेस अटैक। किसी का बिज़नेस है, उसकी इन्फॉर्मेशन हैक कर लेना। फ्रॉड बहुत सारे हो रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। एटीएम्स में जो है पिन है एटीएम का, वो कॉपी करके लोग वही जो है डालकर किसी के अकाउंट को पूरा लूट लेते हैं। या मोबाइल फ़ोन पे आपका एटीएम है या आधार नंबर पूछ के फिर आपका जो अकाउंट हैक करके पैसा ले लेते हैं। स्टीलिंग, चोरी बहुत ही कॉमन हो गई है। प्रोटेक्शन नेटवर्क चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए। ऑनलाइन डेटा अवेलेबल होता है बहुत सारी चीज़ों से, हैकर लोग हैक कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन हैक करने के बाद कोई आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। आपकी आइडेंटिटी, पासवर्ड, वायरस का भी प्रॉब्लम होते हैं, चोरियां होती हैं। तो ज़्यादा जब डिजिटल डेंजर है। सेफ्टी सिक्योर लैपटॉप, वेब सिस्टम होना चाहिए। बैंक कंटिन्यूसली स्प्रेड द मैसेज ऑन मोबाइल फ़ोन अबाउट नॉट टू डिस्क्लोज आधार, पैन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर एंड अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन इफ़ डिमांडेड बाय एनी पर्सन। मतलब कोई भी बंदा अगर हमको ये सारी चीज़ें मांग रहा है फ़ोन पर, तो हमको देनी नहीं है। डू नॉट डिस्क्लोज योर पिन टू एनी वन वाइल विड्रॉइंग कैश फ्रॉम एटीएम। कभी कभी क्या है, कुछ लोग, पहले ऐसा होता था कि इतने लोगों को मतलब ये नहीं रहता था, कॉन्फिडेंस नहीं रहता, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते थे,
तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि एटीएम वो यूज़ कर पाएंगे या नहीं। तो वो बोल देते थे कि भाई ये हमारा कार्ड है, हमसे पैसे नहीं निकल रहे, हमारा पिन ये है। तो अब उसने पिन बता दिया, अब सामने वाले ने उसकी मदद करने के नाम पे ये ले लिया, फिर उसका पैसा निकला नहीं निकला, उसके नाम से वो डबल से क्या है डाल के उसका पिन हैक करके उन लोग भी उसका कार्ड रीयूज़ कर सकते कि दिखाइए ऐसा हो गया वैसा हो गया, अभी ये बता रहा है। अब वो जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है वो बताएगा मैसेज बता रहा है ऐसा मशीन में, तो अपना कार्ड दे देगा, सामने वाला क्या करेगा, उसका पिन उसको क्योंकि पता रहता है तो वो तभी भी थेफ्ट कर सकते हैं। कंज्यूमर्स आर डिसीव्ड बाय शोइंग सुपीरियर आइटम्स। वेबसाइट पे जो है ऑनलाइन जो शॉपिंग हम लोग बोलते हैं, एट टाइम्स जो क्वालिटी, अभी बेसिकली सबके अपने पर्सनल व्यूज़ हैं। ऑनलाइन शॉपिंग इजी भी हो जाता है कि हमने कुछ चीज़ देखी घर बैठे मंगा ली, और वहीं पे उसका डिसएडवांटेज ये भी है कि हमने जो चीज़ मंगाई है उसकी क्वालिटी क्या है, फ्रेश स्टॉक है या पुराना है, और जितना हमसे वो लोग पैसा ले रहे हैं उतना वो प्रोडक्ट डिज़र्व करता है या नहीं करता है, ये हमको तब पता चलता है जब वो प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो भी हमको लेना है, व्हेन वी आर स्पेंडिंग, हम जब पैसा खर्ची कर रहे हैं तो देन वी शुड सी टू इट दैट वी आर परचेजिंग थिंग ऑफ अप्रोप्रिएट क्वालिटी। पार्सल घर पे भी आएगा तो हमको पैसा देना है, हम मार्केट से भी कुछ चीज़ लेने जाएंगे तो हमको पैसा देना है। तो व्हेन वी आर पेइंग फॉर गेटिंग समथिंग देन वी शुड गेट सम अप्रोप्रिएट क्वालिटी प्रोडक्ट। फिर वो डैमेज हुआ तो रिटर्न्स वगैरह का वो सब झमेला रहता है। तो फ्रॉम माई साइड आई विल प्रेफर टू गो फॉर फिज़िकल शॉपिंग रादर देन ऑनलाइन शॉपिंग। फिर ये अगर कार्ड यूज़ किया फिर उसमें अगर किसी ने हैक किया तो वो सारे झमेले अलग। Confidential information about government institutes and companies is obtained from internet with the help of computer programs or other ideas and misuse. This is also called as hacking of information. मैंने कहा था ये चीज़ आपको कि इन्फॉर्मेशन हैक कर ली जाती है। क्राइम लाइक ओपनिंग अ फॉल्स अकाउंट लेके उससे किसी को भी कुछ भी मैसेज देंगे। आप लोग पता नहीं कितना देखते हैं टीवी। एक टीवी में बता रहा था, एक बुज़ुर्ग और बड़े मियाँ और बड़ी भी थे, मतलब एक ओल्ड मैन और एक ओल्ड लेडी थे। ओल्ड मैन रिटायर हो चुके हैं तो उनको एक कोई कॉल करती है लेडी, यही ऐसे फेक ये फेसबुक पे कि हम जो है आपको टूर्स एंड ट्रैवल्स का सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आप हमको आपकी डिटेल देंगे तो आपके लिए टिकट बुक कर देंगे। एंड दैट ओल्ड मैन इज़ प्रोवाइडिंग हर विथ ऑल द इंफॉर्मेशन, और वो अल्टीमेटली ऑनलाइन उनका पूरा पैसा जो है अपने अकाउंट में लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ओल्ड एज में वो लोग विदाउट मनी रह जाते हैं। तो दिस टाइप हमको ये नहीं समझ में आता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। आपको पैसा चाहिए और दूसरे किसी को भी पैसा चाहिए, अब दूसरे किसी ने किस मकसद से पैसा रखा है वो आपको तो नहीं पता। उसके घर में हो सकता है कोई बीमार हो, बुज़ुर्ग हो, कुछ अच्छा बुरा हो, किसी का शादी ब्याह हो, वो सेविंग उसने किस तरह से की है थ्रू आउट लाइफ स्ट्रगल करके, वो हमको नहीं पता। तो किसी के मेहनत का पैसा अगर हम खाएंगे डायरेक्टली, टाइमिंग तो हम इंजॉय कर लेंगे बट उसका फ्रूट हमको कहीं ना कहीं बेयर करना पड़ता है। गलत कामों से जो पैसा कमाया जाता है वो या तो वेस्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं अननेसेसरी हम खर्चा कर लेते हैं, या तो हमारे घर में अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाता है और हमको उसमें इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो कभी भी कोई अच्छे काम में नहीं लगता। तो इस तरह से हमको धोखेबाजी से, धोखाधड़ी से पैसा नहीं कमाना चाहिए। दिस इज़ रॉन्ग एज़ पर इस्लाम ऑल्सो। हमारे मज़हब में भी यही है कि हराम कमाई का क्या है, हमको बहुत सारा उसमें हदीस वगैरह है, खामियाजा भी हमको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, आई डोंट गो इन मच डिटेल अबाउट इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स बट स्टिल व्हाट डू वी गेट टू लर्न। हमको कोई भी लेसन से बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं, तो हमको जब कभी कुछ अच्छा सीखने मिलता है तो हमको सीख लेना चाहिए। सो ऑल द अबव मेंशन्ड आर द एग्जांपल्स ऑफ साइबर क्राइम। कमिटिंग सच क्राइम इज़ ऑल्सो अ मेंटल इलनेस। दिमागी तौर पे हम बीमार हैं। मैंने कहा ना, जैसे फास्ट मनी चाहिए हमको, इजी मनी चाहिए। हमने आज दूसरे को धोखा दिया, अपने पैसे तो बना लिए, लेकिन वो पैसे हमारे कहाँ खर्चा होंगे, कहीं ऐसी जगह पे जहाँ हमने सोचा ही नहीं था। कोई बीमार हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, किसी का ऐसा होता है। ऐसे जो लोग पैसा कमाते हैं, किसी के घर में कोई मर जाता है, मतलब
उनके किए की सज़ा उनकी फैमिली में से या उनका कोई लव्ड वन होता है उसको भुगतनी पड़ती है। अक्सरता यही देखा गया है। मैनी अ टाइम्स इट इज़ सीन लाइक दैट ओनली। तो पुलिस डिपार्टमेंट ने साइबर क्राइम डिटेक्ट करने के लिए एक सेल स्टार्ट किया है, साइबर क्राइम यूनिट। तो ऐसा कुछ भी हो तो हमको पुलिस को रिपोर्ट कर देना है। रूइन एज अ बैड गाइज, स्टॉप साइबर क्राइम, यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। यहाँ पे जो इमेज है वो लाफ्टर क्लब का है। ठीक है, लाफ्टर क्लब क्या है? गार्डन है, ओपन स्पेस है या प्लेग्राउंड है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा होते हैं एंड दे सिंपली लाफ, सिर्फ हंस रहे हैं। वो एक तरह का एक्सरसाइज भी होता है और हमारे दिमाग में जो स्ट्रेस होता है उसको रिलीव करने का एक ज़रिया होता है। तो ये लाफ्टर क्लब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और इसमें एज ग्रुप का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। स्पेशली ओल्ड एज में जब इंसान को निगलेक्टेड लगता है और उसको लगता है कि नहीं अब हमारा कोई सहारा नहीं है, आई एम एन अनवांटेड पर्सन, अभी हमारी कोई ज़रूरत नहीं है किसी को फैमिली में, तो जो लोग मायूस हो जाते हैं जब वॉक पे जाते हैं, उनको अपनी उम्र के या कोई भी ऐसे लोग मिलते हैं जो खुश मिजाज हो, ज़रूरी नहीं है कि ओल्ड एज के ही हो। स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में हर एज ग्रुप में रहता है। तो अगर वो सारे लोग मिलके एक साथ कोई एक छोटी सी बात पे भी हंसना शुरू करते हैं तो उनका जो मेंटल स्ट्रेस है वो चला जाता है। तो दिस इज़ गॉन वेरी कॉमन। डिफरेंट वेज टू रिलीव स्ट्रेस यहाँ मैंने आपको पॉइंट्स में दिया है। इस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन, मतलब आपके दिमाग में जो भी ख्यालात हैं आपको किससे शेयर करना चाहिए? दोस्तों से, पीयर से, कज़न से, टीचर से। ठीक है। एक्सप्रेसिंग आर फीलिंग विद नियर एंड डियर वंस, जो हमसे करीब हैं, कज़न हो सकती हैं, सब में नियर एंड डियर वंस हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। हमारा भला हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा कोई बेहतर नहीं चाहेगा। भाई बहन भी नो डाउट हमारा भला चाहेंगे, बट उनका एक्सपीरियंस जो है काफ़ी हमारे पेरेंट्स का ज़्यादा होता है बनिस्बत तो अपने भाई बहनों से। तो बेटर ये है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है अच्छा या बुरा, हमको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपने पेरेंट्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, उनके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में हर कोई चेंज होता है। आपके जो ब्लड रिलेशन है वो नहीं होते और सब में अहम जो है आपके पेरेंट्स। आपके फ्रेंड्स बदलते हैं, आपके टीचर्स बदलते हैं, आपकी चॉइसेस बदलती हैं, जो नहीं बदलता है वो हैं आपके पेरेंट्स। और आपके पेरेंट्स जितना आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स को समझते हैं, आपको हर हाल में एक्सेप्ट करके चलते हैं, वैसा शायद ही कोई करता होगा। फोस्टरिंग हॉबीज़, हॉबी होनी चाहिए मटेरियल कलेक्शन, जैसे स्टैम्प कलेक्शन हो गया, कॉइन कलेक्शन हो गया, फोटोग्राफी है, रीडिंग है, कुकिंग है, स्कल्पचरिंग, मूर्तियाँ बनाना, ड्राइंग, रंगोली, डांसिंग। इट हेल्प्स टू प्रॉपरली यूटिलाइज आर आर्स बाय डाइवर्टिंग द एनर्जी एंड माइंड्स टूवर्ड्स द पॉजिटिव थिंकिंग। अच्छा सोचना है, बुरा नहीं सोचना है। नेगेटिव थॉट्स आर ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज। लर्निंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, खत्म होना है, ठीक है। सिंगिंग कीप्स अस हैप्पी एंड ड्राइव्स अवे द स्ट्रेस। म्यूज़िक, कोई भी गाना सुनते हैं, सैड सॉन्ग सुनो या हैप्पी सॉन्ग सुनो या डिस्को सॉन्ग सुनो, म्यूज़िक से क्या होता है हमारा दिमाग थोड़ा सा माइंड से चेंज हो जाता है। इम्पॉर्टेंट ऑफ आउटडोर गेम इज़ अनपैरेलल। स्पोर्ट्स से हमारे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीविंग में हेल्प आउट होता है। बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स क्या है? फिज़िकली हम फिट रहते हैं, हम डिसिप्लिन रहते हैं, इंट्रैक्शन और टेंडेंसी ऑफ यूनिटी रहती है, स्पेशली जो स्पोर्ट्स में हम लोग गेम्स खेलते हैं, टीम गेम्स, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, या खो खो बोलो, आप लोग डॉज बॉल बोलो, स्कूल लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ। तो ये सारी चीज़ों में क्या आप एक साथ एज अ टीम काम करते हो, तो टेंडेंसी ऑफ यूनिट और इंटरेक्शन, आप लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो, अकेलापन दूर चला जाता है और आप ज़्यादा सोशलाइज करते हो। रेगुलर एक्सरसाइज, मसाज, स्पा विज़िट करना, इससे भी स्ट्रेस रिलीज़ होता है। योगा जो होता है उससे डिसिप्लिन आता है, बैलेंस एंड गुड फूड की हैबिट्स हम सीखते हैं। मेडिटेशन, शांति, आँख बंद करके बैठते हैं ना, आसन जो अलग अलग है, वो सारी चीज़ें हमको ये करती हैं। जो आँख बंद करके खाली कुछ नहीं काम कर रहे हैं, खाली अल्लाह को याद कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ऐसे कुछ भी छोटा छोटा जो है पढ़ रहे हैं, तो हमारा ध्यान जो है उसमें हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, पॉजिटिविटी हम में डेवलप होती है, हम लोग का कंसंट्रेशन बढ़ता है
और हम लोग को टाइम मैनेजमेंट है, प्लानिंग जो है अपने काम की, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ों में हेल्प होता है। बहुत ज़्यादा बेजारी होती है तो नेचर इज़ द क्लोजेस्ट फ्रेंड, हम लोग गार्डन वगैरह पार्क्स विज़िट कर सकते हैं। यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको, ये जो है WHO, टाटा ट्रस्ट वगैरह ने किया है। 45 डिफरेंट वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस है जो ये है ना तंबाकू मुक्त अभियान। इवन गवर्नमेंट हैज़ टेकन द इनिशिएटिव। इवन स्कूल्स में कहा गया है कि हमको एक बोर्ड लगाना है जहाँ पे सिगरेट का निशान बनाया है, उसको रेड सर्कल में डालना है और उसको क्रॉस करना है, ब्लैक सर्कल में डाल के रेड से क्रॉस करना है, ऐसा कुछ है। ठीक है। देन सलाम मुंबई फाउंडेशन है। सलाम मुंबई फाउंडेशन वर्क कर रही है ताकि जो है स्लम एरियाज़ में जो हैं लोग हैं उनको एम्पावर कर सके। ठीक है। तो उनके लिए एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, बिजनेस, इसके लिए वो लोग मेहनत कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स भी है, काउंसलिंग भी एक ऑप्शन है। काउंसलिंग में हम सारी चीज़ें शेयर करते हैं एक काउंसलर से और वो हमको एक अप्रोप्रिएट सोल्यूशन देते हैं। नीड टू टॉक, हमको बात क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम नाखुश हैं, हमारा रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, हम झगड़ा करते हैं या हमारा ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप बेसिकली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से। ठीक है। फीलिंग मिसअंडरस्टूड, कई बार हमको ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ लेकिन आज तक मेरे को कोई समझ नहीं पाया है। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, काम से रिलेटेड कोई भी स्ट्रेस। सेल्फ एस्टीम इशू, मेरी कोई इज्जत नहीं करता है, मुझे कोई इज्जत नहीं देता, वो भी है। 5 ways टू इम्प्रूव हेल्थ, सोशल हेल्थ। मीट पीपल, लोगों से मिलना चाहिए हमको। बी अप्रोचेबल, इतने रहो ऐसे कि लोग आपको आकर अपनी जो बातें शेयर कर सकें। नर्चर योर रिलेशनशिप, हमारे ताल्लुकात को अच्छे से ख्याल रखना है। नई चीज़ें, ट्राई न्यू थिंग्स करना चाहिए। स्टॉप जजिंग और ब्लेमिंग, हमको किसी को जज और ब्लेम नहीं करना है। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू एंड होप द थिंग्स आर क्लियर फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।